Hey guys, and welcome back to another episode of Documenting People with me. Thank you for joining in and listening to the podcast. It means a lot to me. Please feel free to share your feedback and comments regarding the podcast in the comment section, or you can reach out to me on Instagram, or you can email me at documentingpeople101@gmail.com. You can let me know if you would want to come. I would love to host you. Or if you would want any of your friends or anyone you know who would like to come on this podcast, I would love to talk to as many people as possible. Just in case you feel 1.5 hour episode is too long to watch on YouTube, please feel free to listen to it as a podcast. All the audio links are available in the description box below. Please consider liking, sharing, and commenting on this video. Also, please subscribe to this channel. It's a very new channel. और मेरे subscribers ही नहीं बढ़ रहे हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा? My analytics say that only 40% of the viewers are subscribed. So 60% का scope है भाई. Please subscribe. It's free of cost और उसमें कुछ नहीं, effort नहीं है ज़्यादा. Just subscribe. Feed पे आ जाएगी आपकी वीडियो. आप मत देखो, कोई नहीं. You can watch it at your own pace. No stress. Today's guest is Dhairya, who has this wonderful venture called Purple Opinion. I am very excited to talk to him and know about his life and about his venture, of course. So, without any further ado, let's start the conversation. So, thank you so much for taking out time and being a part of this. It means a lot to me. It definitely means a lot to me. Favorite question is how would you like someone who doesn't know you to know you? Okay, so basically मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले वही बता दूँ कि I'm from an army background, basically defense background. Okay, my grandfather was in Indian Air Force. Okay, and my father is a retired army officer. Okay, and like them only, I am also an army aspirant. Okay, I basically tried for several times for various entries like NDA or technical stream or whether it's CDS. Okay, like combined defense services. Okay, so unfortunately maybe नहीं हुआ मेरा. Still I'm trying. Okay, जो देखते हैं कब तक होता है. So apart from that particular scenario, I'm currently working business development manager basically. So yeah, that's why just एक सिंगल मोटो रहा है लाइफ में कि कुछ भी ऐसा करिए जिससे अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ देश का नाम हो और उसकी वजह से अगर आपका थोड़ा सा मॉनेटरी प्रॉफिट हो देन इट विल बी बेसिकली द चेरी ऑन द केक. ओके, देन आई गेस दिस इज द बेसिक थिंग जो कि मुझे मेरे घर वालों से किया. Nice. बाकी अगर मेरे बारे में थोड़ा सा ये है रिगार्डिंग द क्वेश्चन पार्ट. ओके, सो जैसा कि रहा है फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रही है. सो शुरुआत से अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में हम लोग ट्रैवल कर रहे हुए हैं. दोस्त बहुत सारे हैं. आर्मी बैकग्राउंड से ये प्लस पॉइंट होता है, बहुत सारे दोस्त हैं. ओके, और वेदर इट्स गुवाहाटी, वेदर इट्स ग्वालियर, वेदर इट्स मतलब ईस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थर्न पार्ट हो गया, मिड ऑफ द कंट्री हो गया, फिर सदर्न पार्ट हो गया. ठीक है, आई थिंक सारे पार्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर मैंने हर पार्ट ट्रैवल किए. ओके, एंड आई थिंक this is the thing which I really want you to know, the public. How nice. This is what intrigues me more to start your journey from the very beginning, and because anyone who travels has so much experience and so much exposure to different cultures. It really it's something that अगर कोई एक जगह पे पड़ा होता है तो उसको opportunity नहीं मिली होती है. So because I am a big fan of traveling. Not that I've achieved much of traveling, but I love to. So let's start एकदम शुरू से. जब आप आए दुनिया में पधारे, when you were born, what were the times like? Where were you born? Who all were there in the family? My hometown is Kanpur. Okay, और यहीं पे मेरा जन्म हुआ. Okay, और ब्राह्मण फैमिली से हूँ और my grandfather he was my idol basically. ओके, और शुरुआत यहीं से हुई मेरी. और आई थिंक प्री जो नर्सरी स्कूल होता है, प्री नर्सरी क्लासेस होती हैं, तो यहीं पे पास में एक स्कूल था, मैंने वहीं से किया था. ओके, और उसी के बाद से आगे का सिनेरियो शुरू हुआ कि माय फादर वाज आई थिंक नियर टू हैदराबाद. ओके, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी.
ओके, और वहाँ पे हम लोग रहे। उस टाइम तो स्कूलिंग वगैरह नहीं हुई मेरी आगे, बट मेरी स्कूलिंग मेन जो शुरू हुई वो गुवाहाटी से शुरू हुई। ओके, और गुवाहाटी नियर टू असम। ओके, नारंगी कैंट था। बेस्ट पार्ट ये रहा वहाँ पे कि मेरी पढ़ाई बहुत ही जल्दी शुरू हो गई थी और मैं ओवर अचीव कर गया था वहाँ पे, क्योंकि 5th क्लास से आपकी फर्स्ट क्लासेस, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, ओके, 5 साल जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फर्स्ट क्लास के लिए आप एलिजिबल होते हैं। Right. और आई थिंक मैं 4 साल का था या फिर 3.5 साल का, तो तभी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। बट केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपनी पूरी जो एजुकेशन करी केंद्रीय विद्यालय से करी। ओके, सो वहाँ पे ये एक प्रोसीजर रहता था कि आपको कहीं ना कहीं 5 साल का होना ज़रूरी है। एज क्राइटेरिया होता है। एज क्राइटेरिया, सो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाया। सो आई बेसिकली हैव टू रिपीट माय यूकेजी क्लास इन बेस नर्सरी स्कूल गुवाहाटी। ओके, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लोकल जो कल्चर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मैं रूबरू हुआ। देयर इज़ अ डांस नेम बिहू डांस। ओके, वहाँ का लोकल डांस बिहू। सो वहाँ पे रह के मैंने वो सीखा। और सेकेंड बेस्ट पार्ट वॉज द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया किसी भी एक स्टेज पे आके। ओके, और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिली कि खुद स्टेज पे जो एक अंदर से बहुत पहले से था उसको दूर करने की। सो फिर एक सवाल आता है कि क्या बने। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। मैं घर आया, घर आके पापा से पूछा कि पापा ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या बनना चाहिए। सो पापा ने सिंपली बोला कि मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद बोला तुम जोकर बनो। ठीक है, अब जोकर बनने का हिसाब तो बस ये रहता है कि कॉमेडी वाला हो रहा है, हर कोई मजाक उड़ाया। तो वो थोड़ा सा शायद से शुरुआत से रहा है कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर जोकर बनाऊँ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे मिल रहा है। ठीक है, और लोग मुझे देखते हैं। और फिर नया चैलेंज आता है कि मैं क्या करूँ ताकि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। सो कुछ नौटंकियाँ पापा ने सिखाई, थोड़ा बहुत देखे वीडियोज़ वगैरह, और उसके बाद चीज़ें थोड़े बहुत चैलेंजेस आए। और देन आई बेसिकली मैं स्टेज पे गया और सारी चीज़ें हुई। फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला उस पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, और अच्छा लगा। वो भी एक नया एक्सपीरियंस था और बाकी सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने वहाँ पे। थोड़ी बहुत एसमीज भी वहाँ से सीखनी शुरू करी। बट फिर लेटर ऑन आई मूव टू केंद्रीय विद्यालय नारंगी कैंट के फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास मैंने वहीं से करी। और फिर पापा की पोस्टिंग आ गई ग्वालियर से मैंने 3rd to 7th क्लास मैंने ग्वालियर में करी। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जो मेरा एक पीरियड रहा है वो ग्वालियर। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा समय मैंने वहाँ पे व्यतीत किया और साथ ही साथ अलग अलग कल्चर के लोग से और ज़्यादा क्लोजली मैंने वहाँ पे बॉन्डिंग करी। Also, I think the age also matters ना, कि आप तब like a kid is more susceptible to things and remembers things mostly, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में तो याद नहीं होता है। गुवाहाटी का एक और पार्ट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हम लोग के पास आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं था। फैमिली फ्रेंड हमारे थे, तो एक दौर ऐसा आता है कि जहाँ पे चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा आई थिंक सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, और वहाँ पे सिनेरियोज ऐसे कुछ क्रिएट होते हैं कि टीवी नहीं था घर पे। सो फैमिली फ्रेंड थे हमारे, तो उनसे हम लोग टीवी बोरो करते थे वीकेंड के लिए, ताकि जो चित्रहार वगैरह सुबह सुबह आते थे या संडे को जो शक्तिमान आता था वो लोग देख सकें। तो वो भी एक अच्छा सिनेरियो था, लर्निंग फेज था। और उससे देखा घर पे कि कैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी स्ट्रगल करके अपने बच्चों की मनोकामनाएं जो भी होती है पूरी करते हैं। घर पे मेरे फादर है, घर पे फादर है, मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई है। एंड आई आल्सो हैव अ पेट, हिज नेम इज जिमी. Jimmy is basically from a character, Jim Moriarty. I hope you know. Yeah. So Sherlock character. Yeah. One of the famous villain, negative character. So मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और 3 दिन बाद उसका बर्थडे भी आने वाला है, that is 12th of August. तो यही है, छोटी सी फैमिली है हमारी और अच्छी है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, सब कुछ अच्छे से, हर कोई दूसरे को सपोर्ट करता है। नहीं, दैट इज वेरी नाइस। आपके माता पिता का नाम जानना चाहूंगी, बिकॉज आई फील कि हम लोग मम्मी पापा कह के उनको कैटेगराइज कर देते हैं और फिर उनके नाम आते नहीं है कहीं। Yeah, sure. So my father's name is Mr. Vinay Mohan Shukla. Okay, he's a retired Indian Army officer. Okay, currently he's just doing some freelancing work and network marketing basically.
कि मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। पर्सनली मुझे तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट वही करते हैं। ओके, मदर मेरी हाउस वाइफ है और होम मेकर बेसिकली, एंड शी इज़ ऑल्सो टीचर। मैं जिस स्कूल में यहाँ पे पहले पढ़ता था, यूकेजी एलकेजी जहाँ पे कभी, करेंटली शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। नाइस। ओके, एंड भाई मेरा भी फ्रीलांसर, वीडियो एडिटर एंड मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, खासतौर से ग्राफिक डिजाइनिंग इन सब चीज़ों में उसका काफ़ी अच्छा काम करता है। कूल स्टफ। फुल पूरी बेसिकली उसका भी हिसाब ऐसा कुछ रहा है, पढ़ाई भी कभी अच्छा नहीं रहा। ओके, हाँ पर इन सब एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी और हाँ इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। तो घर पे काफ़ी झगड़ना पड़ा मुझे उसको इस करियर की तरफ आने के लिए, क्योंकि उसका शुरुआत से ही मन था। और घर वालों का आपको ही पता है कि सोसाइटी एक हम लोग एक हाँ डॉक्टर बनेगा, फिर इंजीनियर बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा। हाँ सो मैं शायद से क्लोजली उससे, मैं उससे ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मुझे पता है कि वो इनमें से कुछ नहीं बन सकता, मुझे पता है। ठीक है, बट या ही विल बी ए ग्रेट आर्टिस्ट आने वाले समय में, बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट श्योर। बनेगा। आप बड़े भाई हैं तो आई एम श्योर आप बहुत बुली करते होंगे अपने छोटे भाई को ना, बचपन में तो एटलीस्ट। क्योंकि कभी मैंने नहीं देखा है कि कोई बड़ा भाई बचपन में अगर उसने अपने छोटे भाई या बहन वॉटेवर को बहुत परेशान किया हो तो। हाँ, बचपन में सीरियसली बहुत ज़्यादा मैंने उसको परेशान किया। ठीक है, बट जैसे-जैसे एज बढ़ी है तो आई थिंक इकलौता वो ऐसा शख्स है जो मेरे सारे अच्छाइयों को, सारी बुराइयों को जानता है, ए टू ज़ेड। ठीक है, हम्म। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ पे मुझे सपोर्ट किया, और इनफैक्ट अभी भी बहुत ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आई हुई हैं घर पे कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो ही इज़ द बेसिकली द सेवियर, और मेरा हमेशा से सपोर्ट करें। सो एक एक वक्त होता है जब आप एक एज गैप होता है हमेशा आपके छोटे भाई और बड़े भाई में, और वही एज गैप आपका एक बेटे में और एक पिता में होता है। ठीक है, हम्म। आई थिंक एंड एट दैट पर्टिकुलर फेज जहाँ पे वो एज गैप मैंने क्रॉस कर दिया, और सिमिलरली मेरे मेरे फादर भी हो, मेरी मम्मी भी हो, मेरे भाई भी हो, एक बॉन्डिंग जो होती है ना माँ बाप वाली या फिर माँ बाप बेटे वाली, आफ्टर एन भाई एज तो भाभी वाली, फिर यू बिकम फ्रेंड्स, इट्स मोर डेफिनेटली। लाइक फ्रेंड्स या। सो वो एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होता सभी के लिए, और we basically share each and everything to each other. That's the, I think, best part in my family. फिर आप जब ग्वालियर आ गए तो वहाँ की कुछ स्टोरीज बताएं ना। Yeah, so starting से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्टूडियस रहा था। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड क्लास में सेकंड फर्स्ट रैंक, और फिर जब मैं ग्वालियर मूव हुआ तो आई थिंक मुझे कॉम्पिटिशन थोड़ा अच्छा मिलने लगा, और वहाँ से थोड़ी सी मेरी रैंक नीचे आने लगी। बट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स मेरी मैथ्स हमेशा अच्छी रही थी, तो मैथ्स हमेशा मुझे बचा था। धीरे धीरे करके कॉम्पिटिशन अच्छा मिलने लगा। वहाँ पे मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हुई, अनुराग शुक्ला नाम का बच्चा, लड़के का मेरा फ्रेंड था। उसकी वजह से आई थिंक ग्वालियर का पार्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं ऑलमोस्ट फिफ्थ या सिक्स क्लास में मेरी जो रैंक मार्क्स 95 96 आते थे, ए ग्रेड ए प्लस वगैरह आते थे, वो बी में आने लगे। ओके, बी ग्रेड में आने लगे। सो उसकी वजह से मुझे घर पे काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ा कि तुम क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो, जस्ट। सो ग्वालियर में आके सिनेरियो ऐसा बना कि थोड़ा सा डाउनग्रेड हुई थी चीज़ें, पढ़ाई में चीज़ें मेरी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। और उसके बाद अनुराग शुक्ला ने सपोर्ट की, एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते थे साथ में, ग्रुप स्टडीज़ होती थी, और ट्यूशन क्लासेस मेरी आई थिंक फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्यूशन क्लास लगी थी, और वो भी उसी के घर के पास ही लगी थी। सो वो एक क्लोज बॉन्ड पर वो था। उसकी दीदी आती थी पढ़ने, उसकी एक छोटी बहन थी, तो हम चारों लोग पाँचों लोग साथ में पढ़ते थे। तो वो एक कहीं ना कहीं अच्छा बॉन्ड मेरी तरफ से उसका बना। दोस्ती भी झगड़े से शुरू हुई, ऑलमोस्ट हर किसी की जो अच्छी दोस्ती थी वो झगड़े से शुरू हुई। राइट। सो मैं शुरुआत से फर्स्ट सेकंड क्लास में मुझे, जब मैं गुवाहाटी में था, मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। ठीक है, बच्चे जो होते थे थोड़ा सा, क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर भी रहा था शुरुआत से, तो वहाँ पे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक दो बच्चे थे जिन्होंने मुझे ज़मीन में पटक के मारा। तो वो एक फेज़ था जिसके बाद पापा ने मुझे पर्सनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आई थिंक वो फेज़ मेरा फिर ग्वालियर में निकल गया। मैंने फिर अनुराग शुक्ला के साथ पढ़ाई कर ली, और आई थिंक मेरी उसकी हाथापाई अच्छी खासी हो गई। सो वो बिल्कुल पतला, ऐसा लगा कि मैं न्यूट्रिशन का शिकार, और मैं बिल्कुल ओबेस्ट बंदा, बहुत गंदी लड़ाई हुई। खैर, तो बाद में हम लोगों ने सारी चीज़ सॉर्ट आउट की, एंड ही वाज सीरियसली वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। और आज का टाइम ऐसा है कि आफ्टर सीरियसली द सोशल मीडिया थिंग हम लोग आज भी कनेक्टेड ही हैं।
मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, आई इवन डोंट हैव हिज नंबर, ओह बट मुझे बस ये पता है कि हाँ गोंडा का रहने वाला है। और मैंने बहुत कोशिश करी सोशल मीडिया पर सर्च करने की। इवन बहुत सारे जो अनुराग शुक्ला है उनको मैसेज भी किया, हाँ अनुराग शुक्ला जो लोग मिले थे ऐसे ऐसे, हाँ सो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव रिजल्ट मिला मुझे हर जगह से। और आई एम सीरियसली सर्चिंग नाउअडेज कि अनुराग शुक्ला है कहाँ पे। बट इतना पता है कि जहाँ पे भी वो होगा ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पढ़ाई में हमेशा से वो अव्वल था। फिर सिनेरियो ऐसा रहने लगा कि अगर अनुराग फर्स्ट आ रहा है तो मैं सेकंड आ रहा हूँ, कॉम्पिटिशन मुझे उससे मिलने लगा। और बेस्ट पार्ट ग्वालियर का ये रहा कि ग्वालियर एक मेला होता है, ठीक है, वो एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। अच्छा वहाँ पे आपको सुई से लेके, मतलब बोला जाता है कि सुई से लेके एरोप्लेन तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ओह तो वो एक्सप्लोर की, और जो लोकल डिशेस होती हैं वो लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर करी। चीज़ें बहुत अच्छी थी। ग्वालियर का किला है एक, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ मोस्टली चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करी। मुरार कैंट था, मुरार कैंट अच्छा था। और अंग्रेज़ों के टाइम के हम लोग के क्वार्टर्स होते थे। और जस्ट इमेजिन एक घर है आपका, बहुत ही ऊपर एक पंखा है आपका, वो घड़ 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 करके पंखा चल रहा है। तो वो सब हाँ सिनेरियोस। आर्मी क्वार्टर्स का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के क्लोज रहते हैं। ओके, राइट सो राइट उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को ऐसे देखनी पड़ती है। जैसे मोस्टली लोग अपने आसपास बिच्छुओं को या सांप को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम लोग जिस अभी सिविल सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे बिच्छू भी जा रहे हैं, वहाँ पे सांप भी चल रहे हैं, वहाँ पे नेवले भी जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। सो वो एक क्लोज ऑब्जर्वेशन वहाँ पर। फिर उसके बाद पापा की वजह से पहली साइकिल मुझे वहाँ पे मिली थी। सो दैट वाज सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। और आई थिंक फर्स्ट टाइम था जब हम लोगों ने टीवी खरीदा था। उससे ओह पहले मेरे साथ बोला था कि टीवी नहीं था हाँ हमारे हाँ पास। फर्स्ट टाइम टीवी खरीदा, सो वो भी गोल्डन मोमेंट। सो जब हम लोग छोड़ रहे थे ग्वालियर, जब छोड़ रहे थे तो पापा ने कार बुक कर दी, कैब का। पूरा सामान में हम लोगों ने जो भी शिफ्टिंग होती है ट्रक ट्रक में भर के वो सामान अपने दूसरे प्लेस जहाँ पे हम लोग की पोस्टिंग होती है वहाँ पे भेज दिए। और बाकी मैं, हम लोग की जितनी फैमिली थी वो उस कार से हम लोग आ रहे। सो वहाँ पे राइट सबसे एक याद करने वाली चीज़ हुई थी कि अनुराग शुक्ला अपने पापा के साथ बाइक पे बैठ के आया। और पहला पहला हम लोग के पास मोबाइल दिया था पापा के पास। उसके पास पापा का नंबर था, उसने पापा को कॉल किया और हम लोग ग्वालियर बॉर्डर पे रुके। और वो आई थिंक 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करके बाइक से सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, वो हाउ गिफ्ट आज तक स्वीट। सीरियसली वो आज गिफ्ट आज मुझे तक सीरियसली गूज़बम्प्स आ गए सच में, आई एम नॉट इवन किडिंग। सच में मुझे ऐसे सुन के इतना स्वीट लगा ना, और क्योंकि बच्चे थे तब, ऐसा नहीं कि सीरियसली या 7th क्लास में थे। और दैट वाज सीरियसली हाउ वन ऑफ द स्वीट। बेस्ट मोमेंट। और वो जो उसके इनोसेंस बाद होती है ना उन दोस्तियों की, कि मतलब उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए होता है एक दूसरे से, मतलब कोई मतलब नहीं है कोई उसमें, उम्मीद नहीं रहती, कोई उम्मीद कोई नहीं रहती उम्मीद है। नहीं है। राइट। तो वो आई थिंक हाउ सबसे स्वीट। बेस्ट मोमेंट था ग्वालियर फेज का, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज़। और वो सब कहीं ना कहीं गोल्डन पार्ट में चले गए। सो फिर पोस्टिंग हुई हम लोगों की अहमदाबाद। और हम लोग जो ट्रैवलर थी, ट्रैवलर लेके हम लोग कानपुर है। उस टाइम मेरी दादी जी भी थी और बाबा जी भी थे। और तब दादी को हम लोगों ने आई थिंक यहाँ के जितने भी फेमस मंदिर थे, कानपुर इज फेमस फॉर पनकी मंदिर और शोभन सरकार। ओके, एंड देयर इज अ प्लेस, ओके, बिठूर। बिठूर जगह है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। सीता जी यहाँ पे रही, तो सीता जी ने पूरा उनका पालन पोषण यहाँ पे किया वाल्मीकि के साथ। सो हमने उनको हर जगह लेके गए थे। और कहीं न कहीं उनके साथ जो उनके आखिरी वक़्त थे, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ बिताए। सो वो मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन मोमेंट्स थे कहीं न कहीं, क्योंकि इससे पहले तक दादी अलग रहती थी, तांबरम में रहती, क्योंकि माय ग्रैंडफ़ादर वाज़ इन इंडियन एयर फोर्स। सो तांबरम वाज़ अ प्लेस इन चेन्नई। सो वो वहाँ पे रहती थी। और उसके बाद आई थिंक मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वो कानपुर में साथ में बाबा जी के रहने लगे। सो दादी को हम लोगों ने अच्छे से घुमाना, सारी चीज़ें करी। और ग्वालियर में और भी हम लोग सिविल सोसाइटी में कुछ समय के लिए सिविल सोसाइटी में भी रहते, जहाँ पे रेंटेड क्वार्टर्स होते थे। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फैमिली फ्रेंड्स से मुलाकात हुई, जिनसे हम लोग आज तक कनेक्टेड हैं। ओके, हाँ लोग बोलते हैं कि हाँ हिंदू हो तो मुसलमानों से कैसे दोस्ती कर सकते हो, बट सीरियसली वो ऐसे लोग थे जिनसे बहुत अच्छे संबंध बने हम लोगों के। फैमिली फ्रेंड अच्छे बने। और बहुत, मतलब सीरियसली उसको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे फिर हम लोग अहमदाबाद में भी रहे।
अहमदाबाद में आई थिंक मैंने 8th 9th और 10th 3 साल मैंने अहमदाबाद में किया, और वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। अहमदाबाद में बेसिकली शुरुआत में ऐसा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे 2 केवीज थे, वन वॉज हाँ। केवी कैंट एंड सेकेंड वॉज केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग। सो केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग एक ऐसा स्कूल था जिसका किताबों में नाम था। अच्छा। मतलब टॉप 10 तो नहीं, बट हाँ टॉप 5 केंद्रीय विद्यालय पूरे इंडिया में उसका नाम दिया था। सो मेरे पापा चाहते थे कि शुरुआत से मैं उसी स्कूल में पढ़ूँ ताकि एक अच्छी ग्रोथ मेरी पढ़ाई के मामले में। और नॉर्मली केवीज जो होते हैं वो डिफेंस पर्सन्स के लिए रहते हैं। तो प्रिंसिपल का पता नहीं क्या रूल था, उसने हम लोग को एडमिशन ले दिया। उसने बोला कि ये केवी सिर्फ और सिर्फ हम सिविल जो सोसाइटी की वो करने के लिए कर रहे हैं, नो एंट्री फॉर द डिफेंस पर्सन। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनका पता नहीं क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। मैंने बोला कि मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी रेडी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, बेसिकली वेरी मच कॉन्फिडेंट। अच्छा, मतलब जैसे जहाँ तक हमें पता है केवी में तो ये होता है ना कि आप कहीं मिड सेम भी आप कहीं भी किसी भी शहर से किसी भी शहर ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट इज कि वर्किंग पेरेंट्स जब मूव होते हैं तो बच्चों का वो इफेक्ट ना हो, स्कूल ईयर इफेक्ट ना हो। टीसी लेके हम लोग बस मूव करते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो वो एक बेस्ट पार्ट होता है केवी का, पर उस केवी का पता नहीं क्या सिनेरियो था। तो हम लोगों ने उसी टाइम पे मैं दादी पास्ट अवे, ओके, और फिर हम लोग को तुरंत आना पड़ा अहमदाबाद से कानपुर। सो आई थिंक वो पहला मोमेंट था जब मैंने फ्लाइट में सवारी करी थी पापा की वजह से। A to Z, मतलब कहते हैं जो भी सुविधा होनी चाहिए नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के पास, वो सारी सुविधा मेरे पिताश्री ने मुझे प्रोवाइड करी। सो दैट वाज सीरियसली द बेस्ट पार्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सो अहमदाबाद से फिर हम लोग आए और सब कुछ हुआ दादी की। इट इज सो आयरॉनिक ना, मतलब ये आपने भी बोला तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे भी जानने में भी ऐसा हुआ है कि इट इज वेरी आयरॉनिक कि अभी जो जनरली 90s या 80s बॉर्न जो बच्चे हैं, 80s 90s वाले जो बच्चे हैं, उन और उनके पेरेंट्स, बिकॉज फ्लाइट्स उससे पहले तो मिडिल क्लास के लिए इट वाज नॉट एक्सेसिबल। जब वो एक्सेसिबल हुआ, इट इज सो सैड दैट अ लॉट ऑफ मिडिल क्लास हैज ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट्स ड्यूरिंग अ ग्रीफ सिचुएशन। यू नो, आप एक सोचते हो कि फ्लाइट होगी ऐसी होगी, ऐसे बचपन में तो लगता है, अब तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, बट देन तब लगता होता था ना, इट्स सो आयरॉनिक दैट इट हैज एक्चुअली बिकम अ फिनोमिनल कि काफी लोग ने पहली बार वो एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रीफ में किया कि यू कुडंट रियली। हमारे लिए, क्योंकि हम लोग का ये था कि बहुत ही जल्दी पहुंचना। सो आई थिंक लखनऊ एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं था, या फिर अहमदाबाद से लखनऊ कोई फ्लाइट नहीं थी। सो एयर इंडिया के लोगों ने लखनऊ टू अहमदाबाद टू दिल्ली कर रहे, और क्योंकि ऑब्वियसली प्रियोरिटी हम लोग की जल्दी पहुँचना थी। तो दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है लक्षद्वीप के मामले में, ओके, सो वो भी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उसी टाइम ट्रैवल किया। सो ये थोड़ा सा सिचुएशन, ऑब्वियसली पर्सन वांट टू एंजॉय, पर सिचुएशन वैसी है कि हम लोग नहीं कर सकते। वेरी आयरॉनिकल, या सो वो कहीं ना कहीं एक अजीब सी सिनेरियो था, ऑब्वियसली। And I think more so for your parents, for your father, because हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा अपने मम्मी के क्लोज भी थे, ऑब्वियसली हर कोई क्लोज रहता है। सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आयरॉनिकल था। खैर, फिर हम लोग आए, और फिर क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग की जंग एक चल रही थी अहमदाबाद में कि किस केवी में जाना है, शाहीबाग कैंट में। सो लेटर ऑन हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, पढ़ाई तो मुझे ही करनी है, टीचर पढ़ाएंगे जैसे भी। तो हम लोग ने केवी कैंट चूज़ किया। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि स्पोर्ट्स में मैंने अपने आप को जो पाया है वो केंद्रीय विद्यालय कैंट की वजह से पाया। मैं बहुत ही ज़्यादा चली था उस टाइम पे। आई थिंक मेरी हाइट क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट है, सो उस टाइम पे मेरा वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 50 kgs, बहुत ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि फैमिली में हमारे बहुत ही ओबेसिटी की इशू है। सो उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरा क्लासेस लगाई थी, एक कार्तिक एकेडमी थी वहाँ पे इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा कैंट के बाहर थी। सो मैं साइकिल से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी करके स्कूल के बाद कोचिंग वगैरह जाता था, मैथ्स का स्पेशली क्लासेस का। उसकी वजह से साइकिल चलाते चलाते मेरा स्टेमिना और जो मूवमेंट थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देन आई थिंक 8th क्लास में हम लोगों का कॉम्पिटिशन हुआ, एक ट्रायल बेसिस पे कि कौन कितना अच्छा दौड़ सकता है 100 मीटर के। जब मैंने पार्टिसिपेट करने का सोचा तो हर किसी में बहुत मजा आता है,
पतले मोटे, तू दौड़ेगा, ये वो खूब बोला गया। हाँ जैसे बच्चे होते हैं sure. मॉनिटर में हमेशा शुरुआत में मॉनिटर लगा, सो मैंने बोला कि मैं मॉनिटर हूँ, अटेंडेंस मैं तेरी एब्सेंट लगा दूँ, तेरी पनिशमेंट मैं करवा दूँ, मैं अपना औकात दिखाता था। तो बट फिर भी एक क्लास के कुछ 4-5 लड़के ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चे ऐसे थे जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब स्पोर्ट्स टीचर के फेवरेट थे, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ नहीं। सो उस टाइम मैंने जब पार्टिसिपेट किया, 5 लोग थे मेरे साथ जब रेस हुई तो मैं फर्स्ट आया, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मैं चली तो सबके सब शॉक, इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो सबसे ज़्यादा शॉक, मुझे यार ये कहाँ से आ गया। और जो मेरा टाइमिंग था वो आई थिंक उन सब में मेरे सीनियर्स जो थे उनसे भी सबसे बेस्ट था, दैट वाज अराउंड 13 सेकंड, 13.16 सेकंड। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। देन मैं स्टेट लेवल के लिए भी गया और सारी चीज़ें मेरे को अच्छी थी, और उसका सिल्वर मेडलिस्ट अकेडमी में। सो वो भी कहीं ना कहीं एक फिजिकल माइंडसेट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अदरवाइज एक मेंटल जो ग्रोथ होती है तो शायद से वो और फिर कॉन्फिडेंस आता है ना कि यस यू कैन डू इट। राइट। सो वो सिनेरियोज पे रहे जिसमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं, और मैथ्स वहाँ पे भी अच्छा रहा। मैथ्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैथ्स मेरा कहीं ना कहीं अच्छा था, पर जो एक कंपटीशन मिलना चाहिए था वो मेरे क्लास में नहीं मिल रहा। उसके बाद 2-3 ऐसे मेरे स्टूडेंट्स मतलब क्लासमेट्स हैं जिन्होंने मुझे तगड़ा कॉम्पिटिशन, उसमें से एक क्लासमेट थी, हर नेम वाज इशिता देव, उसके फादर मेरे फादर सेम रेजिमेंट में थे। ओके, सो एक अंदर ही अंदर यूनिट में, मतलब आर्मी के पापा और उनके पापा में राइवलरी चलती थी कि मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा। सो मेरे अगर 95 आ रहे हैं, उसके 96 आ रहे हैं, उसके अगर 95 आ रहे हैं, मेरे 96 आ रहे हैं, यही सब चल रहा था मेरे उसके बीच में। बट कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं। सो एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था अहमदाबाद का, उस टाइम पे आई थिंक मार्क्स मेरे कहीं बीच में लो हो गए, 9th क्लास के आसपास मेरे मार्क्स लोगों के बीच में लो हो गए। पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि मार्क्स कैसे, जबकि ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से लो। तो आई थिंक हाफ में, सॉरी 10th में था, मैं 10th के आसपास मेरे हाफ ईयरली में मार्क्स थोड़े से कम है, फिर अच्छे मार्क्स हैं, और पापा ने उस टाइम आई थिंक मुझे गले से तो नहीं लगाया, पर पूरे जो शुक्ला परिवार था वहाँ पे ढिंडोरा पीटते हैं बाल, फादर्स का यही होता है ना, पर्सन टू पर्सन का भी अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं। हाँ बस सीरियसली, और हमेशा थर्ड पर्सन के हिसाब से अप्रिसिएशन मिलता है। हाँ हमेशा, राइट। वो भी गोल्डन मोमेंट था। My father was also worked as a food inspector in Amul, अहमदाबाद के पास ही एक स्टेशन है आनंद। ओके, सो अमूल का फुल फॉर्म बेसिकली है आनंद मिल्क यूटिलिटी लिमिटेड। ओके, सो वहाँ पे पापा गए थे, और उसकी वजह से हम लोग को कुछ और अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती थी। अमूल के जो मेन प्रोडक्ट्स होते थे, पापा वीकेंड में आते थे और अच्छा खासा सामान लेके आते, चीज़ हो गई या फिर टेट्रा पैक में दूध आता था। उस टाइम मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हो कि टेट्रा पैक में भी दूध आता है, अदरवाइज दूध वाले भैया आते थे या फिर वो सारे। फिर ऐसा भी लगता था ना कि टेट्रा पैक में दूध आता है तो ऐसे 6 महीने रह सकता है दूध, दूध खराब नहीं होता। चीज़ आ रही है और अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी आ रहे थे, वो भी हम लोग ने अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया। चॉकलेट्स, हैंडमेड चॉकलेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती थी, तो वो भी एक एक्सपीरियंस, क्योंकि आर्मी में रहते, पापा आर्मी में रहते, सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग का प्लस पॉइंट रहा कि क्लोजली हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं नहीं एक्सेसिबल है। स्टेन गन चलाना हो या फिर पिस्टल हो, तो क्लोजली ऑब्जर्व करें। और आर्मी बैकग्राउंड, मतलब आर्मी कैंप के आसपास बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं। ओके, जिसमें आराम से 10-15 फीट के आपके लकड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे रोप्स टंगी रहती हैं। So that's basically called monkey ropes. Okay, so उस पे चढ़ के और कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस, फिजिकली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना, वो सारी चीज़ें आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मुझे सीखने को मिली। Especially if you are an army kid, because डैड अगर आर्मी में है एंड आप उनके साथ रह रहे हो, so of course he must have been a disciplinarian. तो वो भी है बचपन से। तो आई थिंक मैंने जितना देखा, जितने आर्मी के से मैंने इंटरेक्ट किया, उनके लिए डिसिप्लिन इज नॉट एन एफर्ट, इट्स अ लाइफस्टाइल दैट दे हैव। लाइक वी स्ट्रगल कि ये कैसे करेंगे डिसिप्लिन में, बट देन ये लाइक हाँ ये तो नॉर्मल है ना, इसमें स्ट्रगल क्या है। सीरियसली, मतलब मैंने भी, मेरे जो सिविलियन फ्रेंड्स थे उनका हमेशा से ये रहता था कि यार ऐसा ऐसा होता हो, बूट से मारते होंगे पापा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। बट सीरियसली आज आई एम 27 years old,
और आज तक पापा ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, एक अच्छी बात रही है। Yeah. तो और तो मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा मार खाई, इतना मार खाई कि नाक से खून तक आ चुका है। बट आई थिंक शी इज़ द लेडी जो मतलब जो भी मैं हूँ, वो उनकी वजह से। मतलब सही रास्ते पे लाना, और भले ही एक स्टार्टिंग जो वो एक गुड टीचर कॉप होते हैं, बैड कॉप वाली गेम खेलनी पड़ती है ना पेरेंट्स को भी। और नहीं बट उसके अलावा भी एक संस्कार देना, वो सारी चीज़ें, वो भी कहीं ना हाँ कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक आई गॉट ऑल द थिंग्स। आर्मी बैकग्राउंड की सीरियसली बहुत सारी स्टोरीज आ जाती हैं, हाँ आई और नो, ऐसी ऐसी छोटी इट्स छोटी सो स्टोरीज वास्ट। रहती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहती हैं चीज़ें। इट्स एन एक्सपीरियंस बिकॉज अगेन वही, क्योंकि बहुत बहुत डिफरेंट लाइफ है फ्रॉम 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 सिविल लाइफ। मतलब आप इवन इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद सिविल किड्स एंड प्लेइंग अराउंड विद देम, बट एक लाइफस्टाइल का डिफरेंस बहुत है। वो स्टार्क डिफरेंस दिखना शुरू होता है बिकॉज स्कूल में भी यू स्टिल गो टू स्कूल विद योर कॉलोनी फ्रेंड्स या फिर विद यू नो जो जहाँ पे आप रह रहे होते हो। वो जो स्टार्क डिफरेंस आता है वो कॉलेज में आता है राइट। because then you move out, you're not living with your family, तो उसमें you get to see the difference and I think it helps because वो discipline it helps because कॉलेज में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की वजह से आधे लोग रह जाते हैं। बाकी लोगों को भी कॉलेज में जाके वो छूट मिलती है ना कि अब कॉलेज वो स्कूल का स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है आपका कॉलेज में। सम कॉलेजेस में हैव बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। एंड बहुत I have personally seen a lot of kids not achieve their potentials because of the lack of discipline or because of just this sheer um, freedom भी नहीं कह सकते पर जो अचानक से छूट मिलती है तो you don't know what to do with it. सीरियसली, तो वो उस पर्टिकुलर जैसे अचानक से अगर छूट मिले, तो शायद से उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे होते हैं कहीं कहीं जिनके आगे बिगड़ैल शब्द यूज़ हो जाता है। राइट जितने आर्मी किड से मैंने इंटरेक्ट किया, वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनमें ये है कि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स देयर इज डिसिप्लिन बट देन देयर इज फ्रीडम फ्रॉम अ वेरी यंग एज राइट। बिकॉज इट्स सेफर बिकॉज सिविलियन कॉलेज वगैरह आप रहते हो तो इट्स नॉट रियली सेफ। बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते आजकल के माँ बाप एंड अंडरस्टैंडेबली सो नहीं छोड़ना चाहिए, इट्स नॉट सेफ स्पेशली इन यूपी वगैरह की जगह पे, फिर इंडिया में इन जनरल ऑल्सो। बट अगर कैंट वगैरह में आप रहते हो इन वेयर आर्मी आपके क्वार्टर्स वगैरह होते हैं तो इट्स अ कंपैरेटिवली सेफर प्लेस जहाँ पे मैंने लिटरली लोग बच्चों को देखा है दे जस्ट रोम अराउंड रैंडमली विदाउट एनी फियर बिकॉज वो एक इंक्लोज्ड एरिया है, बिग एरिया जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली रोम अराउंड कर सकते हो बट इट्स सेफर दैन सिटी। तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी रहती है। कहीं ना तो कहीं दीपिका एक ये भी सिनेरियो रहता है कि इतनी सारी चीज़ें झेल चुके होते हैं, तो उसकी हाँ वजह से भी एक सीख मिल जाती है। ओके, एक बिल्कुल। ऐसे ही इंसिडेंट था एक लेटर ऑन आफ्टर माई टेंथ मैंने अहमदाबाद से किया। सो पापा ने मुझे फिर 11th और 12th के लिए कोटा भेज दिया। ओके, और कोटा में इंजीनियरिंग पढ़ाई इंजीनियरिंग की। सो प्रिपरेशन करते वक्त पापा की पोस्टिंग उस टाइम आ गई थी बीकानेर। ओके, सो बीकानेर के पापा मम्मी और भाई 3 लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे स्टे कर रहे हैं सब कुछ। सो वहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जब यू हैव टू फाइट अपने आप से, ठीक है। और कहने को लोग कहते हैं कि हाँ यार आर्मी की जॉब है, अच्छी खासी तुम लोग को डोज मिलती होगी और पैसे की कमी नहीं होती होगी और बहुत अच्छा सरकारी नौकरी के वाला हिसाब है। बट कहीं ना कहीं एक सिनेरियो मैंने शायद से वहाँ पे फेस किया था कि मुझे भी पता, मुझे भी किसी भी डिस्क्लोज भी नहीं है घर पे, बट एक अंडरस्टैंडिंग हो रही थी थोड़ा बहुत कि अब 18 के आसपास पहुँचने वाले होते हैं, 11th और 12th के आसपास। सो उस सिनेरियो में घर पे आई थिंक थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस था, ठीक है। पर उस सिनेरियो में भी ये दोनों ऐसे लोग हैं, तो मेरे माता पिता की उसकी एक आँच हम लोगों पे नहीं आनी थी, ठीक है। सुबह अगर कॉम्प्लेक्स खाना है तो सुबह कॉम्प्लेक्स खाना है, ठीक है। दोपहर में अगर दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सलाद खाना है तो हाँ खाना है, रात में जो खाना है खाना है, ठीक है। वो सबको सिनेरियो चल रहा है और इनका सिनेरियो कुछ और ही चल रहा है। ये लोग कल रात की जो रोटी है वो खा रहे हैं, वो सब चल रहा है, ठीक है। वो आई थिंक वो फेज उस टाइम मैंने देखी थी चीज़ें क्लोजली, मतलब ऑब्जर्व नहीं करा क्योंकि मैं एक 2 हफ्ते के लिए आया था छुट्टी में। सो
जी, मैंने आई थिंक थोड़ा-सा फेस किया और इसकी वजह से मतलब इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इतने सारे सिचुएशंस देखते हैं, पोस्टिंग्स रेगुलर 2 ढाई साल में आपकी पोस्टिंग होती है, अपने दोस्तों को छोड़ना, सिटी को छोड़ना, नए सिटी में जाना, वहाँ पे एडजस्ट होना, नए लोगों से इंटरैक्ट करना। तो ये आई थिंक एक्सपीरियंस आपको देता है। एंड देयर इज़ अ डॉक्टर इन लखनऊ, उनका नाम मिस्टर स्कंद शुक्ला है। सो उनके पास अभी मैं कुछ महीने पहले गया, आई थिंक 2020 के आसपास। सो बहुत ही अच्छे लिखते हैं, बहुत ही अच्छे हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं और सीरियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी आई हैव मेट। सो बहुत ही अच्छे से जानते हैं और मैं उनके पास गया, मुझे लगा कि यार इतना बड़ा इंसान है, मुझे कैसे जाने, मुझे भूल गया होगा, इतने सालों बाद मैं इनसे मुलाकात करूँ, शायद से भूल गया। मैं बैठा हूँ वहाँ पे अपने दोस्त के मम्मी को मैं लेके गया था, मैं बैठा हूँ वहाँ पे यार कितने सालों बाद मिले हो, कैसे हो यार, इस इंसान को नाम है। मैंने ऐसे उनसे पूछा कि सर आपकी आजकल कविताएँ वगैरह नहीं आती, कुछ सुन नहीं पाते हैं, फेसबुक पे भी आप आजकल एक्टिव नहीं हैं। हाँ यार कुछ चीज़ें चल रही हैं, मुझे टूर वगैरह सब भी जाना पड़ता है, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस रहती है। तो एक बात मैंने उनसे पूछी कि सर आप इतने थॉट्स लाते कहाँ से? उन्होंने बोला कि अरे एक इंसान होता है, मतलब इंसान दो ही तरीक़ों से एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, ठीक है? पहला जो एक्सपीरियंस गेन करता है वो होता है किताबें पढ़ के, ठीक है? और दूसरा एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं वो करते हैं ट्रैवल, ठीक है? राइट। और इन दोनों तरीकों में हम ये भी नहीं कह सकते कि किताबें जो पढ़ रहा है, ठीक है, वो उसके पास कम एक्सपीरियंस है और जो ट्रैवल कर रहा है उसके पास कम एक्सपीरियंस, सीरियसली दोनों बराबर हैं। राइट। तो आई थिंक मुझे जो भी थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हुआ तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर लो, क्योंकि अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट करना और संस्कृति को देखना, उनकी क्लोजली ऑब्जर्व करना। जैसे अहमदाबाद में मुझे की वजह से मुझे गुजराती पढ़नी आ गई, लिखनी आ गई, बोलनी आ गई, ठीक है? वहाँ की जो डिशेज़ हैं उनके बारे में अच्छा खासी नॉलेज हो गई और क्या कल्चर रहता है मतलब उसके बारे में पता, गरबा डांस हो गया या फिर डांडिया हो गया, इन सब मतलब मैं क्लोजली ऑब्जर्व करी चीज़ें। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट अहमदाबाद एंड द गुजरात कल्चर इज़ वहाँ की सेफ्टी। आप नवरात्रि होती है जब, ठीक है, नवरात्रि में जब वहाँ पे मैंने देखा कि लड़कियाँ इतने अच्छे खासे जेवरात पहनी हुई हैं, ठीक है, कपड़े मतलब जो भी कल्चरल ड्रेसेस होती हैं वो सब पहनी हुई हैं, ठीक है, उसके बाद भी रात में सड़कों में घूम और वो सेफ फील करती है। और वही चीज़ अगर शायद से यहाँ पे कानपुर लखनऊ में लोग देखें तो शायद से लड़की सेफ नहीं फील करती नहीं है, या मैंने आसपास अपने फेस किया, फील किया। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी मतलब आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ माय आर्मी बैकग्राउंड मुझे देखने को सीखने को मिली जो है चीज़ें, और उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सही मिल गया जस्ट बिकॉज कर्टेसी मत बात। श्योर। तो फिर फाइनली फिर आप कोटा से फिर वेयर डिड यू मूव देन? कॉलेज कहाँ किया आपने? या सो कोटा से मुझे फिर ये लगा कि शायद से हम 2 साल अपने बर्बाद कर दिए, चीज़ें पढ़ आके पढ़ी। आपको इंजीनियरिंग करनी थी या फिर मतलब लाइक यू वर इंटरेस्टेड, या फिर ऐसा होता है ना कि बाकी सब कर रहे हैं, दिस इज द वे टू डू, तो कर लेते हैं वैसा वाला सीन? आई थिंक वही होता है कि गेमों के साथ गुल्ली के साथ किसी जाते हैं किस गए बस। पापा चाहते थे कि हाँ लड़का आईआईटीएन बने और सब कुछ अच्छे से हो, और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। सो मैंने ये सोचा कि पापा सोच कर तो अच्छे ही सोच रहे। सो आई एम बेसिकली फेल्ड इंजीनियर, ओके, कुछ भी इंजीनियरिंग वाली हरकतें नहीं, कोई भी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें नहीं पता है मुझे, ओके, आई एम जस्ट इनटू नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड करेंटली। बट बेस्ट पार्ट यही था कि मैंने सोचा कि चलो 2 साल तो बर्बाद हो गए, 1 साल और बर्बाद करके देखता हूँ। तो मैंने ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप लेके मैं कानपुर में आया और उस टाइम तक पापा रिटायर नहीं थे, पापा वो जोरहाट असम, ठीक है, कभी मौका मिले तो आप नॉर्थ ईस्ट में जोरहाट पक्का विजिट करिएगा, जोरहाट एंड डिब्रूगढ़ करिएगा, बहुत ही ज़्यादा हरियाली, जैसा हल्के हल्के शावर अगर हम लोग देखते हैं अपने वॉशरूम में, ठीक है, तो वो वहाँ पे 24 घंटे बारिश उतनी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट है। मेरे को मौका नहीं मिला वहाँ पे जाने का, भाई और मम्मी कहते 1 साल मैंने सोचा फिर से ड्रॉप लेते हैं, चीज़ें देखते हैं, फिर से ज़ीरो से शुरू करते हैं, और एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा क्रैक किए। उस टाइम पे मैंने बीआईटी, एक काफ़ी फेमस कॉलेज आई भी है, वेलुर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे उसके आगे का प्रोसेस नहीं पता था कि आपको खुद से जाना पड़ता, खुद से मतलब कॉल करके बताना पड़ता कि हाँ ऐसा समझे, कॉल नहीं आएगी उनकी तरफ से,
ऐसा कुछ नहीं। सो मुझे वो प्रोसेस नहीं पता था, और अदरवाइज शायद से मैं वहाँ से अपना बीटेक करता आगे कंटिन्यू। सो अनफॉर्चुनेटली बेसिकली AIEEE बैंक के थ्रू मेरा यहाँ पे बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PPNIT, यहाँ पे CS ब्रांच में मैंने अपना एडमिशन लिया फाइनल, और मेरी अनफील्ड इंजीनियरिंग की कहानी वहाँ से शुरू होती है। सो हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ाई चल रही है, बट फर्स्ट ईयर जैसे तैसे होता है विथ लॉट ऑफ बैकलॉग्स बहुत टाइम। एक होता है ना कॉलेज का फेज आपका जो लगता है, मेरे किसी सीनियर ने वहाँ पे कहा, किसी ने फैकल्टी ने कहा था कि कॉलेज में आप लोग पढ़ने नहीं आते, ओके, कॉलेज में बस आगे देखने आते हो, सीखने आते हो कि ज़िंदगी कैसे चलती है, ओके। क्योंकि मुझे भी यही लगा कि मैंने पढ़ाई के अलावा वहाँ पे सब कुछ किया, ठीक है। मैंने इंट्रैक्शन किए लोगों से, मैंने लीडरशिप अपनी दिखाई, काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें लीड करी, IIT कानपुर, IIT दिल्ली वगैरह हर जगह पहुँचे, कल्चर एक्टिविटीज़, टेक्निकल एक्टिविटीज़ हर जगह मैंने पार्टिसिपेट की, चीज़ें की। और कोटा से आदत आई थी मुझे काउंटर स्ट्राइक की। काउंटर स्ट्राइक इज बेसिकली कंप्यूटर गेम, मैंने अपने हॉस्टल में इंट्रोड्यूस किया। आई थिंक मुझे उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं पहला शख्स था जिसने काउंटर स्ट्राइक इंट्रोड्यूस किया, और पूरे हमारा जो ए विंग था, ए ब्लॉक पर 99% लोग खेलना शुरू कर दिया। आपकी तरह मैंने पहला, आप थे वो जो अपने बैच को आपने बिगाड़ा है फिर। एक आलम ऐसा है वहाँ पे कि आधी जो मतलब ए विंग है, आधी जनता काउंटर टेररिस्ट बन गई, आधी जनता टेररिस्ट बन गई। और डिनर के बाद, मेरे डिनर हम लोग का खत्म होता था 9 बजे, 9 बजे से लेकर सुबह ब्रेकफास्ट हमारा शुरू होता था 9 o'clock, ओके, वीकेंड से मोस्टली। फिर सैटरडे को हम लोगों ने शुरू किया रात में 9 बजे, तो सुबह 9 बजे तक वो गेम चलते ही जा ऐसा सीन करना। इतना ज़्यादा मैंने वहाँ पे गंदगी फैला। फर्स्ट ईयर में रैगिंग, मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों की रैगिंग की, ठीक है, और भूत की कहानियाँ हो गई, और बहुत मतलब उस भूत की कहानी की वजह से एक बच्चे ने अपना बीटेक ड्रॉप कर दिया। चीज़ का मुझे रिग्रेट है अभी तक। सो ऐसे मतलब उसने मेरे सामने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी यहाँ पे भूत रहते हैं हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, आत्माएँ आती हैं, सो मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, भाई रुक जा। लास्ट उसको जैसे तैसे समझाया, बट तब तक आई थिंक नाव निकल चुकी थी वहाँ से। बस उसने ड्रॉप कर, मैं उससे भी फेसबुक पे और इंस्टा पे रील्स और ऐसे सारी चीज़ें। पर शायद से वो थैंकफुल होगा आपके लिए कि शायद उसको करनी ही ना हो। हाँ, मेरी उसको करनी नहीं थी, बट अभी ही इज डूइंग गुड, ही इज इन बैंगलोर करेंटली, और अच्छा काम कर रहा है, अच्छे नोट छापता है खासतौर से, जो आज सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। सो वो सब रहा। और सेकेंड सबसे बेस्ट एक सिनेरियो रहा हॉस्टल डेज का। हम लोग के टाइम पे एक गैदरिंग होती है अम्बेडकर पार्क का, आपने सुना? सो वहाँ पे सुब्रतो रॉय सहारा की तरफ से गैदरिंग करवाई गई थी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फॉर नेशनल एंथम। राइट, यस। सो अगले दिन हमारा मैथ्स 2 का पेपर, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उस टाइम पे, प्रिपरेशन थी नहीं किसी की, क्योंकि ऑब्वियसली एक रात पहले की प्रिपरेशन होती थी, बट फिर भी मन किसी का नहीं था कि पेपर दें। वार्डन आए रात में हमारे पास कि देख ऐसा है, अगले दिन तुम लोग को जाना है, अगर तुम लोग चले गए तो मार्क्स और अटेंडेंस वो मिल जाएगा, पेपर मार्क्स अच्छे खासे मतलब पासिंग मार्क्स मिल जाए, अटेंडेंस मिल जाएगा, तुम लोग की पढ़ाई हो जाएगी। मुझे वहीं पे एक चांस मिल गया, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। देन मैं और देयर वाज अ गाय राहुल यादव, उसको लोग क्राई बुलाते थे। क्राई उसने बुलाते क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ SSB उसने अटेम्प्ट करी थी, लेवल SSB के दैट पर्टिकुलर टाइम। सो कैडेट राहुल यादव उसको बुलाते थे। सीरियसली मतलब सबसे अच्छा इंसान और एक एक्सपीरियंस जिससे मुझे एक अपनेपन का भाव आता था, वो मुझे वो वहाँ पे मिला। सो हम दोनों ने जिम्मेदारी ली कि सभी बच्चों को कन्विंस करेंगे कि कल नेशनल एंथम के लिए जाना है, और हम चलेंगे। 3 बसेस दिल्ली से अलॉट हो गई और बस चले, और सब कुछ हो गया, हर कोई बच्चा रेडी, मतलब 100 में से 100 बच्चे रेडी, जितने भी बच्चे 100% बच्चे रेडी, एक्सेप्ट फॉर दैट वाज राहुल।
तो एक्सेप्ट फॉर राहुल यादव हर कोई कन्विंस हो गया, मतलब कन्विंस क्या, रेडी हो गया चलने के लिए। मैंने उसको पूछा भाई क्या हुआ, मतलब नेता हम ही लोग बन रहे थे, हम ही लोग बैकआउट कर रहे थे, क्या बात होगी। उसने बोला, नहीं यार पेपर दे देते हैं, आई थिंक वो लोग सिर्फ 35 मार्क्स थे और मैं शायद से 70-80 ला सकता हूँ। यार पहली चीज़ है कि इस मार्क्स का आगे मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जस्ट इन केस नेशनल एंथम की बात है आई थिंक हमें चलना चाहिए, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड तो थोड़ा सा अच्छी बात होगी हम लोग। उसको बोले नहीं यार पढ़ाई है इम्पोर्टेंट। सो मैंने फिर पूरी अपनी पलटन लीड किया। काफ़ी अच्छे दोस्त मिले सीरियसली हॉस्टल से, नीरज, त्यागी, हर्ष। अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर 2 साल हॉस्टल में रहने के बाद हम लोग बाहर शिफ्ट हुए सिल्वर लाइन एक बार फ्लैट्स वगैरह, वहाँ पर हम लोग रहना शुरू किया। तो चीज़ें अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छे मिले। और उसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप देखने को मिलते जहाँ पे ईवीडी के बाहर बसेस चलाई जा रही थी, वो सारी चीज़ें हुई। तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा गेन किया है। सो आई थिंक अच्छा था कॉलेज डेज। इन माय फाइनल ईयर बेसिकली आई जॉइन्ड द कम्युनिटी लिटरेचर कम्युनिटी। इट वाज लखनऊ लिटरेचर कम्युनिटी। उस टाइम पे उसका नाम था लखनऊ लिटरेचर कम्युनिटी, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और संगीत नाटक अकेडमी वहाँ पे लोग इवेंट्स करवाते थे। ओके, लेटर ऑन उसका नाम लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल और करेंटली मेटाफर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से हम लोग इवेंट्स करवाते हैं। सो उस टाइम पे शायद से जस्ट बिकॉज ऑफ लखनऊ लिटरेचर सोसाइटी मुझे लिटरेचर की तरफ थोड़ा सा झुकाव अपना फील हुआ। तो शायद से उस समय मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। कम्युनिटी ज्वाइन करी और 1 साल करीबन मैंने अच्छे से काम किया। आई मेट सेवरल ऑथर्स, सेवरल सेलिब्रिटीज, उनकी लाइफस्टाइल देखी, सारी चीज़ों से इफेक्ट किया। उस टाइम पे एक सीरीज आती थी बैंड बाजा बारात, हाँ राइट। अली फजल और वगैरह, so उनका थ्री आया था वहाँ। सो फर्स्ट टाइम मैंने किसी सेलिब्रिटी से मैंने लगा कि हाँ यार ये भी अपने जैसे ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, इनकी भी 2 आँखें, एक नाक, एक 2 कान। सो अच्छा लगा, बातचीत हुई अली फजल से, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन किया, चीज़ें अच्छी लगी, पूरा क्रू का अच्छा था। और आनंद तिवारी द डायरेक्टर ऑफ बैंड बाजा बारात, वो ही है। उनसे मेरा इंटरेक्शन मेस रूम में हुआ, वॉशरूम में किया। सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। ओके, वो अपने हाथ धो रहे और मैंने अपने सर सेल्फ, मुझे जानते हो, मैंने सर मुझे सीरियसली नहीं पता आप कौन है, मैंने बस आपको देखा था वो भगवान में, ठीक है उसमें आपको कैरेक्टर मैंने बस आपको वही किया था। बाकी मैंने तुरंत सर्च भी किया था कि इसने वो सुना। He's a very good writer as well. Yeah. और उसी मूवी में सॉरी उसी सीरीज़ के वो डायरेक्टर थे। मुझे वो बाद में पता चला जब मैं वहाँ से निकला, सर्च किया, अच्छा हाँ इसी सीरीज़ के डायरेक्टर थे और किसी को प्रमोट करके दिया है। सो चीज़ें अच्छी रही। पीयूष मिश्रा सर से बहुत ही बड़ा फैन, पीयूष मिश्रा सर से मैंने मुलाकात की और आलम ये था कि पीयूष सर का अंदर शो होने वाला है और उन्होंने पूरी अपनी जो फैन फॉलोइंग थी वो बाहर पेड़ के नीचे बना के रखी। ठीक है, 15 मिनट बाद उनका शो है और पेड़ के नीचे वो बैठे हुए और संगीत नाटक अकेडमी और बाकी सबके जो बच्चे वहाँ के वो सब उनके आसपास बैठे हुए उनसे सीख रहे हैं, जो भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ। सो पीयूष सर ने जाते हैं हम लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट्स भी शेयर किए। तो शुक्ला बुलाते थे और उनका से शुक्ला तेरे को क्या चाहिए, तूने बहुत 3 दिन बहुत मदद करी, बता तेरे को क्या चाहिए। उन्होंने सर आशीर्वाद बना के रखी और क्या ही मांग कुछ मांग दो मेरे से, सर आप जो भी आप खुशी से दीजिए। तो उनकी जो बुक थी, जिस बुक के लिए वो प्रमोशन के आए थे, उन्होंने बुक निकाली अपना ऑटोग्राफ कि ये तेरी है। Was it the one कुछ इश्क किया कुछ काम किया? कुछ इश्क किया कुछ काम किया, राइट। ओके, सो उन्होंने बुक दी और पहली बुक थी हिंदी की जो मैंने पढ़नी शुरू की। काफ़ी पढ़ा और लिखने से पहले आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो पीयूष सर की बदौलत मैंने लिखना शुरू किया थोड़ा बहुत और सीरियसली उसके बाद से आज का भी सिनेरियो कि मैंने लिखना नहीं छोड़ा। कोई भी चीज़ें होती हैं उनको हिंदी में खास तौर से लिखने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। सो उससे पहले लिखावट से और पोएम्स होती हैं, शायरी होती हैं, इनसे भी बहुत ही अलग कविताएँ होती हैं।
इनसे भी बहुत एक अलग कनेक्शन बना, क्योंकि पापा भी मेरे कभी कभी लिखते हैं। सो स्कूल की मैगजीन छपती थी, Mm-hmm. so, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे से पूछा गया कि पहले तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, और अपनी Mm-hmm. क्लास में प्रेजेंट करने के लिए तुम्हें लिखना चाहिए। 8th क्लास में आई थिंक अहमदाबाद में मेरे से बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता। पापा थे उस टाइम पे आई थिंक राजौरी में, नेटवर्क इश्यूज होता है जम्मू में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं पापा बोलते हैं पापा ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। पापा ने एक कविता मुझे सुनाई, बोला तुम इस पर थोड़ा सा चेंजेस करके तुम उसको पब्लिश करवा सकते हो। वो कविता थी चांद पे। सो वो चीज़ें रही, और उसकी वजह से झुकाव मेरा जो रहा वो लिटरेचर की तरफ काफ़ी ज़्यादा। सो बस यही था। फिर उसके बाद जब घर से प्रेशर आया कि बेटा बहुत हो गया, अब थोड़ा सा बैंक बैलेंस पे भी काम कर लो। आई जॉइन अ कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी की स्टार्टअप लखनऊ में। सो वो मैंने एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन की, और 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर ग्रोथ के लिए फिर एक अल्टीमेटम मिला मम्मी की तरफ से कि हमारे पास दिसंबर तक का बस वक्त है, दिसंबर तक देख लो, अदरवाइज कानपुर आ जाओ और तुम्हारे हाथ निपटा दिए जाए। ठीक है, तो वो एक प्रेशर मिलने लगा कि यार अभी एज ही क्या हुई है, अभी उम्र ही क्या है, सारी हाँ. चीज़ें। सो सीरियसली और ज़्यादा मैं एफर्ट करने लगा चीज़ों पे आगे बढ़ने। Mm-hmm. देन आई जॉइंड इन एडटेक कंपनी। उसके बाद मैं बैंगलोर जाने के लिए हुआ। उस टाइम मैं सेकेंड टाइम फ्लाइट पे ट्रैवल किया। Mm-hmm. ठीक, तो एयरपोर्ट छोड़ने पापा आए थे, भाई आए थे। सो आई थिंक वो एक सेकेंड मोमेंट था जब प्राउड वाली फीलिंग मैंने देखी थी पिताश्री के अंदर। लड़का नाम करेगा बने सब बैकग्राउंड मूवीज एक बस में पापा कहते हैं बड़ा नाम करे। तो 1 साल मैंने वहाँ पे भी काम किया, बायजूस बेसिकली एज अ Mm-hmm. बिजनेस स्टूडेंट वहाँ पे काम किया 1 साल। और फिर लेटर ऑन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जोमेटो। Mm-hmm. ओके, देहरादून लोकेशन के लिए जोमेटो से मुझे ऑफर आया, और मुझे सारी सहूलियत मुझे प्रोवाइड करी जाती, घर दिया जा रहा था छोटा सा, और एक सर्वेंट दिया जा रहा था, और सारी चीज़ें पैकेज भी अच्छा खासा मिल रहा था। और चाइना ने अच्छा काम कर दिया और जोमेटो ने मेरा ऑफर लेटर ही फ्रीज कर दिया। मतलब सबको निकाल रहा था, मेरा ऑफर लेटर भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। Mm-hmm. सो मैं ना बायजूस में था ना जोमेटो में था 2-3 महीना, क्योंकि बायजूस 1 साल जो भी मैंने किया वहाँ पे मैंने एक ही दिन की छुट्टी की। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि यार बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था। Right. थिंक मैंने 1-1.5 महीना अपने आप को रेस्ट दिया, और फिर बाद में मैंने फिर नई अपॉर्चुनिटी सर्च करी। फिर आई काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई, और चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर काफ़ी कंपनीज मैंने स्विच करी, ज्वाइन करी। और वही कहते हैं ना, अंदर से एक जो पोटेंशियल मिलना चाहिए चीज़ें, वो नहीं मिली। Satisfaction नहीं मिल रही थी आपको. You were सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। yeah. ओके, बट फर्स्ट कंपनी जो मेरी लखनऊ वाली कंपनी थी, वहाँ पे मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, मुझे घर से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना पड़ता था। उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि चीज़ें अपने पैसे बचाना और चीज़ें मैनेज करना, वो शायद से मैं Adulting जिसको कहते हैं. उस पर्टिकुलर फेज में मैंने सीखी। हाँ. एक टाइम ऐसा था, सीरियसली आई वांट टू रिवील दिस थिंग, 41 डेज तक, मतलब 40-41 दिन मैंने खाना नहीं खाया। ओके, और खाना ऐसे नहीं कि मेरे घर के सामने एक किराने की शॉप थी। ओके, वहाँ पे खाता चलता है। ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, घर वालों से भी मैं सपोर्ट एक समय के बाद लेना पड़ता था। तो पैसे वैसे नहीं रहते थे, और खाता चलता था मेरा। मैं सोचता कि जब जॉब वॉब लगेगी तब मैं इसको क्लियर करता, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था वो। उनके यहाँ खाता चलता था, और मैं उनसे दिन में बस एक पैकेट दूध और एक 10 रुपये वाली ब्रेड लेता। सो 40 दिन मैंने उसी पे काम किया, और दिन में मैं सिर्फ एक बार दूध ब्रेड खाता हूँ बॉर्नविटा डाल के। उसमें भी लग्जरी कहती थी कि हम बॉर्नविटा होना चाहिए। सो 40 दिन में ऐसा 41 डेज टू बी एग्जैक्ट। फिर जब फर्स्ट जॉब लगी, फर्स्ट सैलरी जब आई, मैंने पूरा उसका खाता बनते हुए चीज़ें अच्छी चली थी उस टाइम पे। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जॉब में भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था जिससे सारी चीज़ें मेरी मैनेज हो पाई। बस कोई व्हीकल नहीं था खुद का, मुझे पब्लिक व्हीकल्स का सहयोग लेना पड़ता था। पर मेरा जो रूम था, जो मैंने रेंटेड घर लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्कर्ट था, थोड़ा सा गाँव वाले एरिया में था। तो वहाँ पे चीज़ें जाती भी नहीं, ऑटो रिक्शा वगैरह जाती भी नहीं। सो
बहुत बार ऐसा सिनेरियो हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल और माय जॉब कि मुझे रात रात भर काम करना पड़ता है, 10 10 11 11 बजे। तो पब्लिक व्हीकल नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी, तो एक पर्टिकुलर एक एरिया होता था अलॉटेड जहाँ तक मुझे पैदल चलना पड़ता था। सो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी, हाँ यहाँ तक छोड़ देंगे, वहाँ तक छोड़ देंगे। मुझे जानते भी नहीं थे वो, मुझे उनको ये तक नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ, मतलब कुछ भी लेना नहीं। बस मैंने बोला ये वहाँ तक छोड़, उनको छोड़ दिया। तो बहुत टाइम बाद, आई थिंक 3-4 महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोग मेरे इतना करते हैं, अपना सारी चीज़ें अपने टाइम, कुछ कुछ तो ऐसे थे उनको वहाँ पे जाना भी नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे लिए वो वहाँ पे जाते। Yeah, just out of courtesy or out of humanity, let's say. ह्यूमैनिटी बेसिकली। Yeah. सो उस टाइम, उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैंने सोचा कि यार मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो उस पर्टिकुलर टाइम, उससे थोड़ा सा पहले मैंने अपना वेंचर शुरू करा, दैट वाज वर्ड एग्जाम। ओके, सो बेसिकली टीम जिनका पैशन था लिखना मेरे पे, पर मेरा पैशन था हिंदी में लिखना, उन लोग का पैशन था इंग्लिश में। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स आए, जूनियर्स थे बेसिकली, उन लोगों से इंट्रैक्शन हुआ, अदिति, हर्ष, ऐश्वर्या, सब लोग थे। सो हम लोग नाम रखा 15th ऑफ अगस्त, इसकी भी एनिवर्सरी आने वाली है वर्ड एग्जाम की। तो 15th ऑफ अगस्त को हमने वर्ड एग्जाम लॉन्च किया, दैट वाज ऑन फ्री वर्डप्रेस अकाउंट। धीरे धीरे करके थोड़ा सा मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, अपना डोमेन परचेज किया और होस्टिंग वगैरह करी। तो उस पर एक अच्छा खासा काम चला, तो लोग पहचान गए। पर वही रहता है कि हर किसी की एक प्रोफेशनल लाइफ होती है जिसमें उसको समय देना पड़ता है। तो मेरी चल रही थी और बाकी सब चीज़ें चल रही थी, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। और कभी कभी इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस लग रहा है। सो स्टार्टिंग से मेरा डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कमा गया और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ गई। सो मैंने फिर यही सोचा कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग अपना नया विंग शुरू कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली पर्पल ओपिनियन। Okay, Purple Opinion is basically to cover extraordinary stories of ordinary people. वो ordinary people कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, बगल में मेरा जो रिक्शा वाला है वो हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सो मैंने फिर ये सोचा कि मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी, जैसे तैसे मैं उन लोगों को कवर करने की कोशिश करूँगा, एक ही फ्लो में सबको कवर करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से मूव आउट हुआ और मैं उन लोगों को एक शक्ल वापस नहीं दे पाया। उसके बाद हम लोगों ने चीज़ें कुछ ऐसे शुरू करी कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास दिखे जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट वो लोग ऑर्डिनरी भी। अगर आप एसआरएस के सामने चाय वाले लगाते हैं भैया, अगर आप चाय पी लो, उनकी स्टोरी में लोगों ने कवर। उसके अलावा भूतनाथ में एक आगे मंदिर है हनुमान जी का, उनके पास एक पकौड़े वाले भैया लगा, और अंकल की डेथ हो गई थी तो उनके बेटे ने टेक ओवर किया पकौड़े बेचना, साथ ही साथ वो रात की पढ़ाई भी करते थे, ठीक है। और आई थिंक और फिर उसके बाद उनकी शादी अभी करवा दी थी, और 2-3 महीने बाद उनकी मेहनत की वजह से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज का जो एग्जाम होता है तो वो क्रैक किया, डिस्ट्रिक्ट जज। जी, जो लिव्स इन बैंगलोर। ओके, करेंटली वो होगा 23-24 साल का। ओके, मेंटली हैंडीकैप है, बट सीरियसली दीपिका उससे बेस्ट डिज़ाइन उसके एज ग्रुप के में से मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, ठीक है। 1 साल का लड़का है और मेंटली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सीरियसली बहुत डिज़ाइन। तो मैं उसका इंस्टाग्राम हैंडल दूँगा, आई रियली रिक्वेस्ट कि लोग उसे जाके अप्रिशिएट करें। तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है। और इंस्टाग्राम बेसिकली आपका डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। सो जब मैं अपने पुराने वाले घर पर गया तो मेरे साथ मेरा भाई भी रहते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं अपने भाई के लिए करियर चूज़ कर कि उसको आगे कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। सो मैं थोड़ा सा फोटोशॉप और इन सब पे भी काम करता है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। तो मेरे पास बगल में बैठ के देखता था कि ज़्यादा कर क्या है, थोड़ा बहुत सीखता था, क्योंकि स्केचिंग बहुत अच्छी है उसकी। और जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर इज ऑल्सो गुड इन स्केचिंग एंड सिंगिंग। सो उसकी पापा की वजह से आई थिंक इसको विरासत में मिली स्केचिंग करने। सो बहुत अच्छी करता, तो उसकी वजह से उसने सोचा कि डिजिटली मैं स्केचिंग करना शुरू करूँ। तो
सर्च कर रहा था, तो उसकी वजह से चीज़ों की प्रोफाइल मेरे सामने आई। सो मैं रात सुबह आई थिंक 4-5 बजे पे मैं सर्च कर रहा था ऐसी चीज़ें, मुझे चीज़ों की प्रोफाइल 5 बजे के आसपास दिखी, और वो NID गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद गया था, और वहाँ पे अपने भैया के दोस्तों से उसने मुलाकात की। सो मैं वो देख रहा था उसकी स्टोरी, और उसकी स्टोरी देखते देखते मुझे सीरियसली आंसू आ गए। ठीक है, और मैं उसी वक्त उसे मैसेज किया, हाय जीरो, दिस इज धैर्य फ्रॉम लखनऊ, आई एम रियली योर बिगेस्ट फैन एंड आई रियली वांट टू इंटरेक्ट विद यू, ताकि मैं आपके बारे में और अच्छे से जानूँ। और उस टाइम पे पर्पल ओपिनियन का बस एक ख्याल आया था मेरे, और मैंने सोचा था कि जल्दी से जल्दी इसको मैं आगे लाइव करूँ। तो उस मोमेंट तक चीज़ें नहीं हो पाई, बट लेटर ऑन व्हेन वी फर्स्ट स्टोरी, धीरे धीरे करके मुझे मैंने सोचा कि हाँ, चीज़ों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं ला के रखूँगा। फिर चीज़ों से मैंने बात करी, उसके भैया से मैंने बात करी, हम लोग ऐसे ज़ूम में कनेक्ट हुए, सीरियसली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और ऐसे बातें कर रहे हैं हम लोग बहुत ही अलग एक्सपीरियंस के साथ, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, कि धैर्य, डू यू नो समथिंग अबाउट दिस पेपर पेंटिंग, डू यू नो हाउ टू बोर्ड, हाँ जी, जो कैन यू प्लीज टीच मी, मुझे बोर्ड बना के सिखा रहे हैं, पेपर से कैसे बोर्ड बनाना, मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब पहला आई थिंक ऐसा शख्स मुझे दिखा जो मैं जिससे बहुत ही ज़्यादा सीखा हूँ। तो सीरियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसके बाद हमने बहुत सारी स्टोरीज कवर करी, और मुझे शायद जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड एज आर्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्पल ओपिनियन, एक चीज़ के बारे में पता चला जिसमें शायद से मैंने खुद को पाया, ठीक है। और बहुत सालों से मैं जो कंफ्यूज था क्या करना है, वो मुझे शायद से जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड एज आर्ट मैंने खुद को फील किया, खुद को डिस्कवर किया कि हाँ, ये करना है मुझे, ठीक है। ताकि जो भी कंटेंट करते हैं उनको मैंने प्लेटफॉर्म दी, बहुत अच्छी मुझे टीम थी, और सब कुछ अच्छा था, काम भी अच्छा ही, और हम लोग अच्छा कर रहे थे। और सीरियसली क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है, सो करेंटली अराउंड 5 or 6 people who are working with words are, एक अच्छा सिनेरियो सीरियसली बना। इसी बीच में बहुत अलग अलग स्टोरीज भी, लव लाइफ और प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें भी, अलग अलग मेंटल डिसबैलेंस भी चीज़ें कहीं ना कहीं, which is a part of life, which is an experience, right? आप मुझे लिंक जरूर दे दीजिएगा. I would of course put it in the description. I would want everyone to check this out. It resonates with me because it is kind of what I am also trying to achieve with the podcast, which I genuinely feel if you talk to anyone, everyone has a very unique story and a very similar story, which I find really intriguing. कि कोई इतना मतलब आपकी upbringing is so different, but there are so many things I can genuinely relate to you, and then there are so many things I will be intrigued by कि ओ अच्छा ऐसे भी experiences होते हैं, और या फिर you know that is so nice to hear, living vicariously basically is what I'm trying to say. So yeah, I would love everyone to check it out. जितने भी थोड़ा सा लोग देखते हैं, 2-4 लोग प्लीज देख लेना यार. बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई अपना पैशन को कहीं ना कहीं फॉलो करे, क्योंकि यार 9 से 7, 9 से 8 जॉब हर कोई करता है, पैसे की पीछे लगे हुआ है, ठीक है। और पर एक जो पैशन फॉलो करने वाला इंसान है वो बहुत ही कम है। भावना से भी आई थिंक मैं ऐसे ही कनेक्ट हुआ था, भावना बेसिकली वो स्टॉप मोशन करके मैंने उसके वीडियो किसी की स्टोरी में देखी थी, सो मैं कनेक्ट हुआ भावना से भी, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। और एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि यार किसी को भी अप्रिशिएट करने से कोई इंसान छोटा नहीं है, ओके। और आर्ट को कहीं ना कहीं तवज्जो दीजिए, कि आर्टिस्ट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक खुद को आउटडेटेड समझता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं अगर ये कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, या फिर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट इन माई केस मुझे मैं लिखता हूँ कभी, मुझे हमेशा ये लगता है कि लोग हिंदी राइटर्स को हमेशा ये सोचते हैं कि यार वो वही एक इंसान है जो बस्ता टांगे हुए आता है, कुर्ता पहन के, और वो भी ऐसा वो रफू कारवा कुर्ता होना चाहिए, पूरा कुर्ता भी नहीं होगा. तो वो एक मानसिकता आई थिंक थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, और आर्टिस्ट को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, क्योंकि आर्टिस्ट आज के टाइम पे पैसे का भूखा नहीं, बट वो रिस्पेक्ट का भूखा है. श्योर. वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने कम से कम
दो लोगों को पर्सनली उनको रिकमेंड किया कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग, यू शुड मेक करियर इन राइटिंग. ओके, currently as a one of our content writer, Harsh, he is pursuing his career in content writing. ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ मैंने खुद से डिस्कवर करी कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस अच्छा कर लेता हूँ. सो वो चीज़ भी अच्छी ये लगी. तो आपको बीटेक में इन्फ्लुएंस करने का पावर पता चल जाना चाहिए था. आपने बंदे की कोर्स छुड़वा दी. आपको तभी पता हो जाना चाहिए था कि मैं अच्छा कन्विंस करता हूँ. वो तो रैगिंग की वजह से हुई थी. सीरियसली मैंने उसकी रैगिंग Just करी, kidding, ऑल्दो yeah. रैगिंग वाज नॉट अलाउड. पर चीज़ें हुई, नॉर्मल बातचीत हुई, उसको समझाई के बारे में. बट सीरियसली जो करंट सिनेरियो में हुआ था कि जूनियर से बातचीत करके कंटेंट राइटिंग के लिए मैं उसको बोला कि यार तुम्हें यही करना चाहिए, तुम इसी के लिए बने. सो उसने किया अच्छा था. और घर से ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग के बाद तुम कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो, तो एक पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं. ओके, हर किसी के लिए वही एक मुझे 3 इडियट्स का वो रेशियो. पापा नहीं मानेंगे. पापा नहीं मानेंगे वो वाला ही सर. उसने भी बोला सर पापा नहीं मानेंगे, ट्राई तो करो, पापा सब मानते हैं. I also understand the parents' perspective क्योंकि जब वो लोग बड़े हो रहे थे ना, सारे स्ट्रीम्स थे ही नहीं. सीरियसली So they do not know कि that you can earn. उनका basic क्या है? You don't go hungry. You have the lifestyle that we have given you at least. Even if आप बहुत बड़े ना बन जाओ, maintain what we have brought you up with. It's not their fault that they cannot believe कि ऐसी भी चीजों से पैसा कमाया जा सकता है. सीरियसली 15, 16 साल के बच्चे इंस्टाग्राम अकाउंट और सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब्स वगैरह करके एंड दे आर अर्निंग वेल. दे आर अर्निंग एनीथिंग बिटवीन 30 to 50,000 per month. राइट. And it's unbelievable for me, so of course I can understand it's unbelievable for the parents. सीरियसली तो वो एक पर्सपेक्टिव उनका भी सही है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं देखी थी. और वही सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे अपनी फैमिली में भी देखने को मिला क्योंकि भाई का करियर कोई और डिमांड कर रहा है, वो कुछ और डिमांड कर रहा है, माता पिता कुछ और डिमांड कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस आते हैं. Right. और इट्स आवर ड्यूटी कि कहीं ना कहीं उनको समझाना. अच्छा मुझे ये लगा कि हाँ हर्ष ने चीज़ें करी अच्छे से, उसके घर वालों ने उसको समझा. और करेंटली भाई भी स्ट्रगल कर रहे हैं घर वालों को समझाने की यार मेरा बैक हो कि मैं समझाने के लिए मैं समझ जाएंगे. Sure. इसलिए वो भी कहीं ना कहीं होता है. इनफैक्ट बहुत सारे मेरे आसपास लोग हैं जो अपने आर्ट की वजह से आज के टाइम पे अच्छे खासे मिल सके. ओके, आई रियली लाइक टू टेक नेम ऑफ आयुषी खरे. ओके, शी इज लीड इलस्ट्रेटर इन वाइट हेड जूनियर. ओके, बहुत ही अच्छा काम करती है. और वही था उसकी भी शुरुआत कहीं ऐसे छोटे से जॉब से घर पे स्ट्रगल की. इससे कुछ पैसे नहीं मिलते, इससे घर नहीं चलता है, तुम एक काम करो आ जाओ बैंक की तैयारी करो, बैंक पीओ निकालो, ये सब. बट शुरुआत देखी मैंने, अच्छा किया उसने. करेंटली शी इज लिविंग नॉट लैविश बट हाँ good life. I think most of the artists, even if they are working in a corporate job, I can't say for everyone, but most of them I've seen do not want lavish life. They just want decent, comfortable lives because एक point के बाद उनको पैसा इतना matter नहीं करता है. What matters is your satisfaction. Like you also said, you are doing jobs, you are earning, you are paying your bills, but you are not satisfied in what you're doing. So that is very important. मतलब कहीं ना कहीं नोट छापने वाले जो एक सिनेरियो है कि हाँ नोट छापिए, कोई इशू नहीं है आप क्योंकि obviously you have responsibilities. नहीं, for sure. I'm not at all saying कि वो important नहीं है. वो भी important है. But then there should be a balance between that and your mental satisfaction. सीरियसली आप करिए, आप सब कुछ करिए, आप 9 से 7 की जॉब करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, सारी चीज़ें करिए. बट एक चीज़ है मैं जो कहना चाहता हूँ कि रुकिए ना. ठीक है, करेंटली बहुत सारे मतलब अभी तक आज के तारीख तक आधे घंटे पहले तक मैंने सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स, बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ फेल हो. ठीक है, बट एक सिनेरियो ये रहता है कि रुक नहीं दो. ठीक है, और चीज़ें जिस दिन रुक जाती हैं, जिस दिन आप खुद से रुक जाते हैं, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है और उसके आगे बढ़ने का इंसान सोच नहीं सकता. क्योंकि इसलिए सबसे पहले समाज से तो आप बाद में लड़ेंगे, आपको पहले खुद से लड़ना. ठीक है, जब आप खुद से लड़ना सीख जाएंगे तो समाज ऑटोमेटिक समाज पे कहते हैं भाड़ में जाए. ठीक है, आप अपने काम करें. तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ लर्निंग. कीप हसलिंग. मेरा तो हमेशा से एक मोटो है, कीप हसलिंग, एवरीथिंग यू विल अचीव. मतलब जो आप डिजर्व करते हैं डेफिनेटली. एक एनर्जी है हमारे आसपास
जो सारी चीज़ें देख रही है और वो एनर्जी आपको वो सारी चीज़ें देगी जो आप डिजर्व करो सीरियसली। बिल्कुल। And I would also like to take this opportunity and say कि the only good thing that COVID has taught us is that life is very short. You never know when सीरियसली it'll end. You सीरियसली literally never know. The reason that this podcast I finally started after 3 years of planning was because COVID happened, and I realized that there is a very real possibility that I may not get the chance to do it ever again. If I keep on looking for all the green signals, if I keep on looking for that perfect time, or I never wanted to do it online, but I had no other option then. Then I had to wait another 5 years Deepika, for you things are to doing open a up. great So job. Okay, and you are नहीं seriously ऐसा तारीफ करने की जरूरत नहीं है. It's okay. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉडकास्टिंग बट मैं बहुत ही सालों से वही कह रहे हैं ना, आपको भी ग्रीन सिग्नल का आप वेट कर रही थी, मैं Yeah. अभी तक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा था और जिस दिन हमारी बात हुई उस दिन शायद से मुझे ग्रीन सिग्नल मिला कि यार सीरियसली करना चाहिए, ठीक है। और मैं Yeah. पॉपुलर ओपिनियन को बेसिकली पॉडकास्ट में आने के बहुत पहले से विचार बना रहा था। मेरे टीम मेंबर भी थे देविकांत के, उसने मुझे बोला कि सर आपको ये करना चाहिए, पॉडकास्ट इज द न्यू फ्यूचर। I have 3 of my favorite questions again. अगर मेरा पहला वाला फेवरेट होता है और लास्ट के 3 मेरे फेवरेट होते हैं. How would you define happiness? हैप्पीनेस बहुत ही छोटा शब्द है और मीनिंग बहुत ही बड़ी है। और सीरियसली हैप्पीनेस फॉर मी सीइंग माय पर्सन हैप्पी। ओके, मेरे आसपास के लोग जो हैं वो लोग खुश हैं और आसपास में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता भाई नहीं हैं, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, ओके, मेरे फ्रेंड्स हो गए, ऑल द सराउंडिंग जिनी, ठीक है, आसपास के जितने भी लोग हैं हर कोई खुश है। और सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी नहीं, फिजिकली अच्छे से, मेंटली खासतौर से आज के टाइम पे मेंटली खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो हर चीज़ में उनके पास जिस चीज़ की वो सुख सुविधा चाहते हैं वो सारी चीज़ें उनके पास हैं। And what is success? Like your डेफिनेटली definition of success. Not वो मुझे वो वाला नहीं चाहिए जो सोसाइटी को लगता है. What? How do you define success for yourself? Success for me is basically seeing Purple Opinion and Word as a successful venture. Okay. So what is definition again? Return. Yeah, definitely. Circle back हो गया question पे. So obviously Word as art का main motto यही है कि जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं उसकी ग्रोथ उसी हिसाब से करूँगा। और पर्पल ओपिनियन बेसिकली ऑब्वियसली अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी। आई रियली वांट टू कवर ईच एंड एवरी पर्सन जिनको कवर करने की सख्त ज़रूरत है आज के टाइम पे, ताकि उनके बारे में भी दुनिया जाने, ठीक है। इवन मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता, हजरतगंज में पप्पू भैया हैं सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, और उनकी इनकम ऐसी होती है 8-10 हज़ार, ठीक है, और उनकी कम्युनिटी पूरी आई थिंक 25 से 30 कुत्तों की है, ठीक है। 8-10 हज़ार में वो हर दिन उस 25 से 30 कुत्तों को खाना खिलाते हैं, और खाना भी उनका दूध चावल दही चावल दूध रोटी ऐसे सब स्किप कर देते हैं। सो मैं उनसे मिला, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे रहते होंगे जिनकी स्टोरीज के बारे में किसी को नहीं पता। सो आई रियली वांट टू कवर दोज गाइस, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको भी लोग जानें, उनको भी ये पता चले कि उनका जो जीवन है वो आम जीवन नहीं है, उनका जीवन थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, ताकि लोग उनको उस हद तक पहचानें जिससे चीज़ें समझ में आ सकें। सो आई थिंक दिस इज व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी। हर कोई थोड़ा सा अपने अलग प्लेटफॉर्म है, और आई थिंक सोशल मीडिया आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बूम पे है कि ये चीज़ें करना डिफिकल्ट टास्क नहीं, ओके, सो अचीवेबल है। और आई एम जस्ट मेकिंग दिस कम्युनिटी, जस्ट क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, ताकि लोगों को पता चले कि किस हिसाब से करें। I'm really thankful to Aditi Goyal and Aishwarya for building this community with me. Seriously, these two guys are my backbone. Okay, और obviously female society इतनी अच्छी बढ़ रही है, इतनी अच्छे से आगे बढ़ रही है, सो परचम बहुत ही जल्दी लहराने वाले हैं फीमेल्स का। सो that's the best thing which I really happy। और उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें हटें, दैट इज पेट्रियार्की सोसाइटी।
ओके, आसपास बहुत सारे मैंने इस लॉकडाउन में सिनेरियोज देखे हैं, घर में झगड़े, आसपास स्टोरीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि हटे वो सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग को मैंने देखा, स्टोरीज मैंने सुनी है, तो कोशिश मेरी बस ये है कि उन लोगों को भी मैं कवर करूँ आगे चल के, ताकि उनकी भी लाइफ एक अच्छे मुकाम पे हम देख सकें। And the last question is, what is death? कर्म अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी मौत वहीं पे हो रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से यही है कि जिस काम के लिए आप आए हैं, ठीक है, वो काम आपको पता नहीं चल रहा है, और वो काम अगर आपको पता लगने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे तो शायद से आपकी मौत वहीं हो जाए। आप फिर अपनी बॉडी को बस लेके जा रहे हैं अंतिम संस्कार डेथ बेड तक, बस वहीं तक है चीज़ें। मुझे नहीं लगता आगे चीज़ें आपकी निकल पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे अगर आया तो किसी न किसी मोटो से आया। मे बी आपका मोटो यही हो कि इस पॉडकास्ट को एक अलग लेवल तक लेके जाऊँ, डॉक्यूमेंट्री जिस हिसाब से आप कर रही हैं, ठीक है, आई थिंक दिस इज द मोटो ऑफ योर लाइफ। मे बी मेरा मोटो ये हो कि टोटल ओपिनियन को मुझे उस हिसाब से आगे तक लेके जाए, तो हर किसी का कुछ ना कुछ मोटो है। ओके, सो अगर हम लोग इस मोटो को पता लगने के बावजूद अगर हम उसको आगे तक नहीं कर रहे, सो आई थिंक डेथ हमारी यहीं पे हो चुकी है। So I think this is the part. Nice. And that was all of my questions. The only closing note is, ऐसा कुछ जो आप अपनी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री में अभी तक आपकी लाइफ में हुई हो, आप अपनी डॉक्यूमेंट्री में रखना चाहते हो और आई डिडंट आस्क एंड यू वर लाइक अरे पूछो तो मैं बताऊंगा, तो कुछ मैंने स्किप कर दिया हो तो आपको ये दिस इज द पोर्शन आप ऐसा रख सकते हैं। I don't think so कि apart from just asking about my love life, I think सारी चीजें covered हुई हैं, and I really don't want to disclose that particular thing as well. Obviously हम लोग 2 साल बाद फिर से मिलेंगे और उम्मीद है कि 2 साल के बाद मैं आपको ये सारी स्टोरीज जो हिडन पार्ट्स हैं वो अच्छे से सुना सकूँ। Hopefully. Sure. Would love to. So thank you for taking out time and being so generous with your time. And the 2 people who are watching till now, अभी तक जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में ऐसा पर्पल ओपिनियन ओपी लिख दीजिए, जस्ट टू शो कि आप लोगों ने लास्ट तक देखा है। एंड डू फॉलो धैर्य एंड आई लीव ऑल द सोशल्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको जाके बिल्कुल चेकआउट करें, रीच आउट टू हिम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू जॉइन, इफ यू वांट to know something new, if you have any ideas, let's say, so feel free to reach out to him. I'm sure he'll answer, और नहीं भी करेंगे तो not my responsibility, आपस में निपट लें। So and मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 60 सब्सक्राइबर तो कर दो यार, 60 तक पहुंचा दो, लाइक कर दो। एंड इफ यू थिंक कि आप YouTube पे नहीं देख सकते तब बहुत लंबा है, so all the audio links are in the description. Feel free to listen to it as a podcast. Thank you. Bye.